کہانی کی شروعات ایک کپل کونر اور ٹیلر سے ہوتی ہے جو ایک ہی آفس میں کام کرتے ہیں، جس کا سی ای او کونر ہے اور ٹیلر اس کی اسسٹنٹ، جس نے کونر کے ساتھ اس کا بڑا بزنس بھی سنبھالا ہوا ہے اور اس کے گھر میں رہنے والی بیمار موم جون کو بھی۔ ساتھ ہی وہ ان دونوں کی پبلکلی ہونے والی منگنی کی بھی تیاری کر رہی ہے، جبکہ اس سے پہلے ہی وہ اور کونر چھپ کر شادی کر چکے ہیں۔ کونر ہی اب چاہتا ہے کہ وہ پوری دنیا کے سامنے شادی کریں، لیکن ٹیلر ابھی اس کے لیے کچھ وقت جاتی ہے۔ کونر ٹیلر کو بزنس، گھر اور تیاریوں میں مصروف دیکھ کر اس کے لیے اور جون کے لیے پریشان ہوتا ہے، اس سے وہ جون کے لیے نرس رکھنے کا سوچتے ہیں تاکہ جب کونر اور ٹیلر گھر چھوڑ کر الگ گھر میں جائیں تو جون اکیلی نہ ہو جائے، جبکہ اس کے ساتھ ہاؤس کیپر میری ہوتی ہے، لیکن وہ گھر کی دیکھ بھال کے لیے رکھی گئی ہے۔ کونر ٹیلر کو نرس رکھنے کے لیے منع کر جون کو منانے کے لیے ایک ریسٹورینٹ لے جاتا ہے، جہاں ابھی بزنس کے بارے میں ہی باتیں کرتے ہوئے جون طبیعت خراب ہوتی محسوس کر کے گر جاتی ہے، جس پر کونر بہت پریشان ہو جاتا ہے، لیکن خوش قسمتی سے ایک نرس نورا وہاں موجود ہوتی ہے جو جون کو ٹھیک کرتی واپس کرسی پر بٹھا دیتی ہے اور خود اپنی جگہ پر چلی جاتی ہے، جدھر وہ کونر کی جون کے لیے نرس رکھنے کی باتیں سن لیتی ہے، لیکن کوئی بھی ری ایکشن دیے بغیر وہ وہاں سے جانے لگتی ہے کہ کونر اس کے پاس آتا سے اپنا کارڈ دے کر انٹرویو کے لیے گھر آنے کا کہتا ہے، جس پر نورا بہت خوش ہو جاتی ہے کیونکہ اس نے گرین ویلے نامی شہر سے شکاگو شہر میں آئے ایک دن ہی ہوا تھا۔ نورا اپنے گھر کی طرف بڑھتی ہے تو اسے دروازے پر ایک نوٹ لگا ملتا ہے، جسے دیکھ کر وہ بہت پریشان دکھائی دیتی ہے اور بار بار آس پاس دیکھتی ہوئی گھر کے اندر چلی جاتی ہے۔ نورا اگلے دن انٹرویو کے لیے کونر کے گھر جاتی ہے تو وہ کونر کے گھر کی لوکیشن، اندر سے گھر کا حال اور جون کی پہنی جیولری دیکھ کر سمجھ جاتی ہے کہ کوونگٹن فیملی بہت امیر ہے۔ ساتھ ہی وہ بار بار سیکیورٹی کیمرہ اور لاکر کو بھی دیکھی جاتی ہے، جس کے بارے میں گھر دکھاتا کونر نوٹس نہیں کرتا، بلکہ اس سے اس کی پچھلی جاب کے بارے میں سوال کرتا نورا کو واپس جون کے پاس لے جاتا ہے۔ جون نورا کی سی وی، اس کی عقل مندی اور اس کے جون کی طرح ہی پلانس پسند کرنے کی وجہ سے نورا سے بہت امپریس ہوتی ہے اور نورا کے وہاں سے جانے کے بعد کونر اسی دن نورا کے دیے ریفرنس نمبر پر کال کرتا ہے۔ ریفرنس نمبر اصل میں اس شخص کا ہوتا ہے جس کے پاس آپ نوکری کر چکے ہو۔ بہرحال کونر نورا کے ریفرنس نمبر پر کال کر کے نورا کے بارے میں اچھی باتیں سنتا ہے، اس سے وہ نورا کو کال کر کے جاب پہ رکھ لیتا ہے۔ نورا انٹرویو کے بعد ہی کوونگٹن فیملی کے بارے میں سرچ کر کے ان کی امیری کے بارے میں جان چکی ہوتی ہے اور ابھی ہی اپنے ہسبینڈ بین سے بچ کر پریشان گھر آئی ہوتی ہے۔ اس سے اچھی خبر سن کر بہت خوشی ہوتی ہے اور تھوڑی دیر کے لیے اپنے پر نظر رکھے کسی شخص اور بین کے تنگ کرنے کی پریشانیاں بھول جاتی ہے۔ پھر اگلے دن کونر کے گھر جاتی ہے، جدھر ٹیلر اور کونر اسے اسی دن جاب کی شروعات کرنے کا کہتے ہیں، جس پر کوئی اعتراض نہ ہونے کی وجہ سے نورا انہیں تسلی دیے وہاں سے بھیج دیتی ہے اور خود جون کے ساتھ گیم کھیلنے لگ جاتی ہے۔ پھر وہ جون کے لیے پانی لینے جاتی ہے تو دروازے پر ناک ہوتا ہے، جسے کھولنے پر نورا کو ایما نامی عورت ملتی ہے جو کونر کے بارے میں پوچھتی ہے، لیکن اس کے گھر نہ ہونے کی وجہ سے چلی جاتی ہے۔ نورا کے پوچھنے پر جون نورا کو بتاتی ہے کہ ایما اصل میں کونر کی ایکس گرل فرینڈ ہے جو بہت عرصے سے کونر کی گرل فرینڈ تھی، لیکن پھر کونر نے اس سے بریک اپ کر لیا اور اب ٹیلر کے ساتھ ہے، جس کی وجہ سے ایما ٹیلر کو رشتہ ٹوٹنے کا ذمہ دار سمجھتے ہوئے ایک دفعہ اس کے آفس میں توڑ پھوڑ بھی کر چکی ہے۔ اس سے جون ایما کو خطرناک بتاتی نورا کو اس سے دور رہنے کا کہتی ہے۔ نورا پورا دن اسی طرح جون کے ساتھ گزارتی ہے، پھر زیادہ رات ہونے پر اپنے گھر جاتی ہے، جدھر اس کے اندر آتے ہی اس کے ساتھ بین بھی اندر آ جاتا ہے، جو نورا کو بتاتا ہے کہ وہ اس محلے میں ہی شفٹ ہو گیا ہے، یعنی جس شخص نے نورا پر نظر رکھی ہوئی تھی وہ بین ہی تھا، جس سے نورا کی کوونگٹن فیملی کے لیے کام کرنے کے بارے میں پتا چل چکا ہے۔ اس سے وہ نورا کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر وہ اسے طلاق چاہتی ہے اور اپنی ممی کو بھی محفوظ رکھنا چاہتی ہے تو وہ اسے کونر کے گھر کے اندر تک پہنچوائے گی اور وہ پولیس کے پاس بھی نہیں جا سکتی، کیونکہ وہ گرین ویلے میں ایسا کچھ کہہ کے آئی تھی، جس کی وجہ سے اسے اپنا نام لے نورا سے بدل کر نورا رکھے چھپ کر زندگی گزارنی پڑ رہی ہے اور بہن نورا کے ڈرنے کی فکر کیے بغیر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ نورا پریشان ہوتی ہے لیکن اپنی جاب پر دھیان دیتے ہوئے جون کا خیال رکھتی ہے، جس کے دوران ہی میری آتی ہے جو پہلے جون کا خیال رکھتی تھی اور اسے نورا کی نوکری پر رکھے جانے کا نہیں پتا تھا، اور میری پہلی دفعہ ہی مل کر نورا کو پسند نہیں کرتی، جس کا اندازہ نورا کو بھی ہو جاتا ہے، لیکن وہ اس کے بارے میں سوچے بغیر جون کے کہنے پر گیراج میں ٹشوز لینے جاتی ہے، جہاں وہ لاک ہو جاتی ہے، ساتھ ہی گاڑی سٹارٹ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے گاڑی سے نکلی گیس گیراج میں پھیلنے لگ جاتی ہے، جس سے نورا کو سانس لینے میں مسئلہ
होने लग जाता है और उसके दरवाजा खटखटाने पर भी जून और मैरी उसकी आवाज नहीं सुनते। नोरा का जब सांस बंद होने लगता है तो मैरी दरवाजा खोलकर उसे बाहर निकाल लेती है और सारा वक्त नोरा को शक की नजरों से देखती रहती है, क्योंकि उसे लगता है कि नोरा ने ये ड्रामा खुद किया है ताकि वो कॉविंगटन्स को अपनी जिंदगी खतरे में डालने पर सो कर सके। इससे मैरी ये सब टेलर को कॉल करके बताती है, जो मैरी की बातों की वजह से नोरा पर शक करती मैरी को उस पर नजर रखने का कहती है और खुद इंटरनेट पर नोरा के बारे में सर्च करती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता, जिस पर उसे बहुत हैरानगी होती है। जबकि हमें पता चलता है कि टेलर खुद भी वो नहीं है जो दिखती है, क्योंकि उसका कॉनर के दोस्त और कंपनी के CFO रेक्स के साथ अफेयर चल रहा है, जो उसे कंपनी में फोरेंसिक अकाउंटेंट के सारे अकाउंट्स गहराई से चेक करने का बताता है, जिस पर टेलर परेशान हुई दिखती है, लेकिन रेक्स की तसल्ली पर मुतमईन हो जाती है। टेलर अगले दिन अपनी दोस्त लूसी से मिलने जाती है तो उसे नोरा के बारे में बताती है, जिस पर वो उसे तसल्ली देती है कि वो नोरा के बारे में मालूमात जमा करवाएगी, जो सुनकर टेलर मुतमईन हो जाती है। और जब वो बाहर निकलती है तो उसे अपने पर नजर रखे शख्स की तरफ से गाड़ी पर एक नोट मिलता है, जिसमें उसे नोरा के बारे में मजीद मालूमात जानने के लिए रात को मिलने का कहा होता है, जिसके बारे में टेलर कॉनर को न बताते हुए सिर्फ नोरा के बारे में मालूमात जमा करवाने का बताती है। और कॉनर की रात को सोने पर चुप कर घर नोट पर बताई जगह पहुँचती है, लेकिन पार्क में जाने के बजाय वो डर के आधे रास्ते में ही वापस आ जाती है। टेलर अपना इरादा बदल कर घर आ जाती है, जहाँ गाड़ी से निकलते हुए उसे अपनी गाड़ी में लिफाफा मिलता है, जिसके अंदर अखबार का हिस्सा कटा होता है, जिस पर ग्रीनविले में काम करने वाली लिया नामी नर्स के बारे में बुरी खबर होती है, जो टेलर घर ले जाकर कॉनर को दिखाती है, जो पहले तो टेलर पर इतनी रात को निकलने पर गुस्सा करता है, फिर उसे तसल्ली देता है कि उन्हें मालूमात जमा होने पर नोरा के बारे में सब पता चल जाएगा, इससे वो परेशान ना हो। टेलर उस वक्त तो कॉनर की मानती दिखती है, लेकिन अगले दिन वो अखबार पर आर्टिकल लिखने वाली रिपोर्टर को कॉल करती है, जिससे उसे कुछ खास पता नहीं चल सकता, जिसके बारे में सोचती वो जून के पास जाती है, जहाँ जून के बजाय नोरा ने जून को उसकी टी दी होती है। और जून, जिसकी नोरा से अच्छी दोस्ती हो गई है, वो टेलर से लेकर नोरा को 2 दिन बाद अपनी कंपनी की 40th एनिवर्सरी पर रखी पार्टी में आने का कहती है, जिस पर नोरा खुश हो जाती है। टेलर ऑफिस जाने के लिए तैयार होती है और जाने से पहले मैरी को दोबारा नोरा पर नजर रखने का कहती है और कॉनर के साथ ऑफिस के लिए निकल जाती है, जहाँ रास्ते में टेलर के कॉफी लेने जाने और कॉनर के अकेले रह जाने पर एमा कॉनर के पास आती है और टेलर को ऑफिस तबाह करने के इल्जाम का गलत होने का बताती उसे एक लिफाफा देने की कोशिश करती है, जो करते हुए ही वहाँ टेलर आ जाती है, जिससे देखकर एमा डरती हुई फौरन वहाँ से भाग जाती है। लेकिन टेलर उसकी गाड़ी पर उस हाई स्कूल का स्टिकर देख लेती है जिसमें एमा काम करती है और टेलर ऑफिस जाने पर एमा से छुटकारा पाने के लिए एमा के स्कूल कॉल करती उसके खिलाफ झूठी रिपोर्ट करती है कि एमा ने एक स्टूडेंट के साथ गैर मुहज़्ज़ब रवैया रखा, जबकि वो जानती है कि इसकी वजह से एमा की रेपुटेशन खराब होगी। टेलर इस बात की परवाह किए बगैर एमा के इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाए जाने के बारे में कॉनर को जाकर बताती है, जो उसे परेशान दिखता है। टेलर के पूछने पर कॉनर बताता है कि कॉनर के दोस्त और अकाउंटेंट फ्रैंक ने बताया है कि कोई एम्प्लॉय थोड़ा थोड़ा करके कंपनी के अकाउंट से पैसे किसी और अकाउंट में भेज रहा है, जो दोनों सुनकर बहुत परेशान हो जाते हैं। जबकि इधर मैरी टेलर के कहने पर नजर रखने का काम करते हुए मैरी को पहले नोरा के जून के डायमंड्स पर ज्यादा गौर करते देखती है, फिर वो उसी दिन नोरा को डंडे से घर के बाहर लगे कैमरा का एंगल बदलते पकड़ लेती है। मैरी शाम को कॉनर और टेलर के आने पर उन्हें नोरा के ख्याल की वजह से जून को ठीक होने की वजह से खुश होता देखकर जेलस हुई टेलर को अकेले ले जाकर नोरा की हरकतों के बारे में बताती है और खुद जब घर से बाहर निकलती है तो नोरा को धमकी भी देकर जाती है कि वो उसकी असलियत सबके सामने ला कर ही रहेगी। नोरा पहले इस बात पर डरी होती है कि बहन ने उसे गैराज में बंद करके कत्ल करने की कोशिश की थी और उसने बहन का कहा ना किया तो वो अपनी कोशिशों में कामयाब भी हो जाएगा। साथ ही नोरा को मैरी की धमकी की वजह से अपनी जॉब खतरे में होने की भी परेशानी लगी होती है। उधर टेलर को लूसी से नोरा के बारे में थोड़ी सी मालूमात मिलती है, जिसके मुताबिक नोरा का रेफरेंस के लिए दिया नंबर उसका खुद का ही है, यानी जब कॉनर ने नोरा के बारे में जानने के लिए कॉल की थी तो वो असल में नोरा ने ही कॉल उठाई थी। और टेलर अपनी मिली मालूमात को सच साबित करने के लिए घर जाती नोरा के रेफरेंस नंबर पर कॉल करती है, जिस पर उसे नोरा का फोन बजता दिखता है, जिससे उसका शक यकीन में बदल जाता है। इस सबसे बेखबर नोरा अपने घर जाती है, जिधर खाना खाते हुए उसे बेन का धमकी भरा मैसेज आता है, जिस पर नोरा कोई हल न होते हुए बेन को बता देती है
है कि वो अगले रात एक दरवाजा खुला छोड़ देगी क्योंकि अगले रात पार्टी है और इसके ख्याल में घर कोई नहीं होगा। नोरा अगले दिन परेशान और डरी हुई कॉनर के घर जा रही होती है तो रास्ते में उसे एमा मिलती है जो उसे वही लिफाफा जबरदस्ती पकड़ा देती है जो वो कॉनर को देना चाहती थी और एमा नोरा को वो लिफाफा कॉनर को देने का कहती वहाँ से चली जाती है, जिस पर नोरा ना चाहते हुए भी लिफाफा बैग में डाले कॉनर के घर चली जाती है। जिधर कॉनर और टेलर घर ही होते हैं और नोरा उनसे अलग होकर कॉल सुनने जाती है जिस पर टेलर ने नजर रखी होती है और फिर जानबूझकर टेलर नोरा के सामने लॉकर का पासवर्ड डालती है जो देखकर नोरा फौरन वहाँ से चली जाती है। नोरा जून के पास बैठी होती है कि जून की तबीयत फिर से खराब होने लग जाती है, जिस पर नोरा उसे बेड पर रेस्ट करने के लिए छोड़कर किचन में आती है जिधर वो ग्लास में बचा पानी प्लांट में डालती है और किचन से जाने लगती है कि उसकी नजर अपने बैग में रखे एमा के दिए एनवेलप पर पड़ती है जिसे वो क्यूरियोसिटी में खोलती है तो उसे किसी शख्स के कार क्रैश में मारे जाने की रिपोर्ट्स और मरने वाले की बेटी हाना की तस्वीरें और साथ पासपोर्ट मिलता है जो टेलर होती है। यानी टेलर ने भी अपना नाम बदलकर अपना कोई राज छुपाने की कोशिश की है। नोरा वो लिफाफा कॉनर को देने का सोचकर अभी जून के पास जाती है जो तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से पार्टी में नहीं जा सकती, जिस वजह से नोरा उसके पास रहने का फैसला करती है, जिस पे मुतमईन हुआ कॉनर वहाँ से पार्टी के लिए निकल जाता है। जबकि टेलर को नोरा के बैग से लिफाफा मिल जाता है जिसमें अपने बारे में मालूमात देकर वो परेशान हुए सारे पेपर्स जला देती है ताकि नोरा के पास टेलर के खिलाफ कोई भी सबूत बाकी ना रहे। टेलर नोरा से छुटकारा पाने के बारे में सोचने लग जाती है, जिसके दौरान ही उसे पार्टी में मिलती लूसी बताती है कि उसकी जमा की हुई मालूमात के मुताबिक नोरा, जिसका असल नाम लेनोरा था, वो एक अमीर फैमिली की बीमार मम्मी के लिए काफी अरसे से काम कर रही थी, लेकिन एक दिन मम्मी की किसी वजह से डेथ हो गई, जिस पर फैमिली के बेटे ने नोरा पर इल्जाम लगाया कि उसकी गलती की वजह से डेथ हुई। लेकिन कुछ अर्से बाद नोरा की उसी की बेटे से शादी हो गई और रिपोर्टर की कही बात के मुताबिक टेलर अंदाजा लगाती है कि बेटे और नोरा ने मिलकर मम्मी को इंश्योरेंस के पैसों के लिए मारा था। टेलर ये मालूमात लेकर डील होने पर खुश हुए कॉनर से मिलकर उसे अपने घर जून को देखने जाने का बताती वहाँ से निकल जाती है, लेकिन उससे गुस्से में आता रेक्स पकड़ लेता है क्योंकि उसके मुताबिक टेलर ने उसे उकसाया था कि वो कंपनी के अकाउंट से पैसे लेता रहे ताकि जब काफी पैसे जमा हो जाएं तो टेलर उसके साथ भागकर शादी कर ले। लेकिन अब रेक्स को पैसे चोरी करने की वजह से पकड़ा जा रहा है जो यकीनन टेलर की ही चाल थी। टेलर रेक्स को जख्मी करती वहीं छोड़कर घर की तरफ जाती है जिधर नोरा को पता चल चुका है कि टेलर जून को चूहे मारने वाला जहर दे रही थी क्योंकि शाम में जो पानी उसने प्लांट में डाला था उसने कुछ ही देर में प्लांट को मार दिया था, जिस पर शक होने की वजह से नोरा टेलर की जून के लिए रखी खास चीनी की बोतल चेक करती है जो चूहे मारने वाले जहर के डब्बे से निकली हुई दवाई जैसी होती है। नोरा बोतल और बॉक्स लिए जून को बताने जा रही होती है कि घर में गुस्सा बहन उसे पकड़ लेता है और इसे पासवर्ड पूछकर लॉकर खोलने की कोशिश करने लग जाता है, जिसमें मसरूफ देखकर नोरा उसे गिराकर खुद छुप जाती है और मौका मिलते ही उसे जख्मी के बेसमेंट में लॉक कर देती है कि तभी वहाँ टेलर आ जाती है जिससे नोरा बेन की ब्लैकमेलिंग का बताती है। टेलर उसकी बातें सुन रही होती है कि उसकी नजर गिरे जहर पर पड़ती है, जैसे उसे पता चल जाता है कि नोरा उसका सच जान चुकी है, इसलिए वो चाकू नोरा पर दाने उसे जून के कमरे में ले जाती है जहाँ उसकी बातों से सारी गुट्ठी सुलझ जाती है। असल में टेलर जो हाना है उसके रात जॉन कोविंगटन के लिए बहुत मेहनत से काम करता था, लेकिन उस पर एक इल्जाम लगा जिस पर उसे नौकरी से निकाल दिया गया। जब बर्दाश्त न करते हुए जॉन डिप्रेशन में शराब पीने लग गया और एक रात शराब पिए हुए गाड़ी चलाने की वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया, इसलिए टेलर उसकी मौत का जिम्मेदार कोविंगटन को समझते हुए पूरे प्लान के साथ काम करती रही, जिसके मुताबिक वो जून को थोड़ा थोड़ा जहर देकर मारती रही जो उसे नोरा के आने की वजह से बढ़ाना पड़ा और इसे जानबूझकर कॉनर को एमा के साथ रिश्ते के दौरान अपने जाल में फंसाकर ब्रेकअप करवाया और थोड़े अरसे में ही कॉनर से छुपकर शादी कर ली क्योंकि उसे पता था कि अगर जून को शादी का पता होता वो प्रेनअप लिखवाती, जिसमें ये शादी से पहले फैसला किया जाता है कि तलाक की सूरत में पति को कितनी और पत्नी को कितनी प्रॉपर्टी मिलेगी और अगर ये ना लिखवाया जाए तो पति पत्नी में बराबर प्रॉपर्टी तकसीम की जाती है। बहरहाल टेलर ने अपने प्लान को तेज इसलिए किया क्योंकि उसे नोरा से डर था कि वो उसका सच जान जाएंगी, लेकिन जब टेलर को नोरा का सच पता चला तो उसने नोरा का नाम इस्तेमाल करके उस पर इल्जाम लगाने का सोचा, इसलिए वो नोरा को सीढ़ियों से गिराकर खुद जून के मुंह पर तकिया रखकर उसका सांस रोककर उसे मारने जाती है, जो देखते हुए जख्मी हुई नोरा जून को बचाने के लिए चाकू पकड़े टेलर से लड़ने लग जाती है, जिसके दौरान कॉनर आ जाता है जिसे
उसे फ्रैंक से मालूमात मिली थी कि रेक्स किसी हैना के अकाउंट में पैसे भेज रहा था और हैना की बचपन की तस्वीर में टेलर का नेकलेस देखकर वो समझ जाता है कि ये हैना टेलर ही थी और बाहर मिलने वाला जख्मी रेक्स भी कॉनर को टेलर के बारे में सच बताता है। कॉनर टेलर की असलियत जान के फौरन घर आता है, जिधर वो नोरा को बचाकर टेलर और बेन को अरेस्ट करवा देता है। इस सब के बाद जो नोरा के ख्याल रखने की वजह से बिल्कुल ठीक हो जाती है, जो देखते हुए कॉनर, जिसने एमा को अपनी जिंदगी में दोबारा शामिल कर लिया है, वो नोरा को एक और अच्छी ऑफर देता है, जिससे नोरा ठुकरा देती है क्योंकि वो ग्रीन विले वापस जाकर अपनी मम्मी के साथ वक्त गुजारना चाहती है ताकि वो अपना सच सामने आने के बाद एक नए चैप्टर को खोलते हुए अपनी जिंदगी गुजार सके। यहाँ खत्म होती है सस्पेंस से भरी कोविंगटन हाउस की कहानी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।